Delhi saw another day of protests on July 21st, but this time the confrontation shifted from student protesters to opposition leaders. As students continued to recover from injuries sustained during the previous day's police action, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav and other opposition leaders, took their protest to the Prime Minister's doorstep. After marching from Parliament area, the leaders staged a sit-in near 7 Lok Kalyan Marg, demanding accountability for the police action during Monday's student protest. They also continued to raise the NEET issue and demanded the resignations of the Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, along with the Education Minister Dharmendra Pradhan. The sit-in ended with Delhi police detaining Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra along with other leaders. Videos released by the Congress show Rahul Gandhi lying on the road as police personnel attempt to remove him from the protest site. The party also shared a photograph showing what appeared to be a nosebleed on Gandhi following the police action. In another video, Rahul Gandhi is heard saying, "Democracy in India is happening right now." A separate video shows Priyanka Gandhi Vadra resisting as police personnel attempt to take her into a police bus. The government meanwhile opened a channel of communication. Minister of State in the PMO, Jitendra Singh, and Union Home Secretary Govind Mohan met Rahul Gandhi at the protest site and urged him to end the sit-in. Singh later claimed that Gandhi initially agreed to withdraw the protest if the government allowed a discussion on NEET and related education issues in the parliament. But Singh alleged that Gandhi later added a fresh demand of Dharmendra Pradhan's resignation, accusing him of changing the goalpost. Congress leaders, however, maintained that they were protesting against the alleged police action on the students and accused the government of refusing to address the issues in the parliament. Singh described the opposition's approach as one of confrontation and conflict. और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मर्तबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज़ माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं,
हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़ी विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्ज़ी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्ज़ी है। फिर गृह सचिव जी ने भी एक बात रखी कि साहब अगर आपको बैठना ही है धरने पर तो कम से कम इस जगह ना बैठिए, ये इससे बहुत असुविधा हो रही है जनसंधारण को। तो बोले ये भी मेरी मर्ज़ी है। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में हैं। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। और जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, आपको स्मरण हुआ आज प्रातः ही प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है, और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। उसके बावजूद भी यदि विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष सहयोग करने को तैयार नहीं है तो मुझे विश्वास है देश की जनता देख रही है, जिम्मेवारी उनकी रहेगी। While the Congress protest unfolded outside the Prime Minister's residence, the Aam Aadmi Party held a separate protest at Jantar Mantar. AAP leaders criticized the government over the police action against students and questioned why the government had opened talks with the Congress within hours, while according to AAP leader Atishi, it had not engaged with the CJP protest despite its weeks-long agitation. The parallel protests added a new political dimension to the student-led agitation, with the opposition now taking the confrontation to the streets, while the government maintains that it is willing to discuss the NEET issue in the parliament.